With your permission, we start, sir. Good evening, sir. I, on behalf of Ministry of Power, Bureau of Energy Efficiency, and all my colleagues, I welcome Honorable Minister Shri R.K. Singh Ji, Minister of State for Power, Independent Charge Power, NRE, and Minister of State for Social Development, Skill Development and Entrepreneurship. Secretary Power, Shri Rahate Ji, Additional Secretary Power, Devendra Kumar Singh, Development Commissioner and Additional Secretary MSME, Shri Abhay Bakre, Shri Ashok Tiwari Ji, Vice President of All India Brick Manufacturers Association, and representatives from Regional Brick Association, Brick Manufacturers, Builders Associations, other ministries, think tanks, press media, and SDAs, our partner at the state level. Today, we have assembled here to observe launch of Energy Efficiency Enterprise Certification Program for brick sector. Energy Efficiency Enterprise Certification Program for brick sector is being launched today by Honorable Minister to kickstart a series of events from Ministry of Power, Government of India under Azadi Ka Amrit Mahotsav. Sir, Azadi Ka Amrit Mahotsav is Government of India's initiative to mark 75 years of India's independence. The idea behind the Mahotsav is to start celebrations of 75 years of India's independence, 75 weeks before 15th August 2022 and extend up to Independence Day of 2023. Sir, as you all aware, Indian brick sector is second largest in the world, employing a large workforce, and this sector has got huge energy efficiency potential, sir. And the idea behind this program is to tap all these places. Sir, with your permission, we request Director General BE to make a small presentation for overview of the sector. Thank you, Rajpal ji. Honorable Minister, sir, Secretary Power, senior officials from government, all partners who have connected through video and also through the live streaming. I'll just give you the overview of the scheme which will be launched today as part of our overall mission. Sir, all of us are aware that we are a growing economy and our energy demand is increasing. But at the same time, our energy saving potential is also being tapped with all various energy efficiency measures. In the recent verified savings, sir, we have saved 28 million tons of oil equivalent as against our consumption of 585 million tons of, in the country. Sir, the highlights of recent impact study itself says that about 145 billion units of electricity we have saved. Altogether 28 million tons of oil equivalent in all forms of energy, and which is actually worth 1,15,000 crore for the entire country. Sir, the verified saving itself, the schemes which we have verified and which we are launched, which we are implementing, the government, itself be 177 million ton. But if we take total the all kinds of savings which we are getting through energy efficiency, the total million ton of CO2 which is saved is 310 million ton every year, sir, in the year 1920. Sir, this is in the order of that the entire country's trees and plants, whatever CO2 they are saving, that is almost 320 million tons CO2, and our saving itself is almost equivalent to that. Sir, to see further, what should be our target, sir? Coal remains the highest primary energy supply, and industry is the highest consumer, sir. So these are the focused area. They will continue to. Sir, we have been targeting the large industry. We have fought successes. Now we are targeting to MSME clusters. We have already entered to the MSME clusters, and bricks is one cluster where we found the highest potential, and we are the second largest brick manufacturer. Sir, mostly the bricks industry, as we can see, and we have, sir, engaged. This is as part of our GIZ partnership program. We engaged the expert agency to do the entire mapping, and this started in 2019. We done extensive stakeholder consultation. I have personally attended many meetings, seminars with all bricks association and technical people.
So we can see a wide range of technologies available, right from the typical the clamp, which is we call it Pajava, and going to the zigzag and even the modern cleans of FCBK, the fixed chimney type, etc. We also have the products, sir, the solid bricks, the hollow bricks, and now the most important, this thing. And these are actually more energy efficient. I'll come to that in the scheme, sir. What is the current size, sir? It is actually having 0.7% of India GDP, a huge contribution to GDP. Almost 1.5 lakh units are operating, and 1 crore people are employed, indirectly or directly. So it is actually using 5% of India's coal, which is almost 40 million ton, and that is almost 5% of country's coal they are using this particular sector. And on the consumer side, sir, the construction industry is using this partition wall. Almost 80% that volume is coming from the bricks. And as we know, sir, currently we have 25,000 crore bricks being manufactured every year. But sir, the potential, the kind of construction we are expecting in next 10 years, by end of 2030, it will be, sir, 75,000 crore. So it will be threefold requirement of number of bricks in the country, sir. 75,000 crore. That will be the requirement, sir. We have done the technical analysis, sir. and that's why we came to know this is the sector in SME which has got the highest potential. So the conventional technology, if we say the solid clay brick with clamps, as we call Pajava, then followed by the, so there the consumption, that is the per meter cube of bricks, is in the order of somewhere 3,100 million joules per meter cube. If we come to slightly advanced, which is the fixed chimney kind of tunnel kiln, so we can have around 2,300. If we go to zigzag, which can save more heat within the system, we can even come down to almost 1,800 or so. And we can have a fly ash, use of fly ash, which is again a better material. We can have even say up to 30%. We can even further save the energy up to 1,600. Finally, if we modify the product, these products are going to be more efficient in terms of building energy saving, because they are perforated, they can have better insulation for heat and cooling, etc. We can even save the further energy in terms of the manufacturing itself, because the kind of raw material will be less and they will be useful for the consumer, sir. So we could see, sir, different technologies, different products, and all of them have been mapped. We have discussed with all our partners and manufacturers. They are all, most of them are listening now on the mode. So what is the mission, sir? We want that energy as well as resource efficiency in this particular sector. We want to have modernization in technology. We also want to have a market-based approach so that it can create a more and more demand for energy efficient bricks. We also want that the labor which is used actually should be skilled as far as possible in terms of how energy efficient technology can be operated, what kind of better products can be this thing. And also we want to invite more and more investment potential. We want to save the environment by reducing the emission in terms of the pollution, etc. And finally, the health of workers will be also impacted. So we have developed, sir, this E3 certification. This is the first step. We have many more initiatives how to increase the market potential, etc. So this particular scheme, sir, encourages the modernization and also incentivize for the create more customer demand. So this is awarded from that every big brick manufacturing unit, which will be on average basis 25% more efficient than the conventional one. So that means if all of them they try to adopt, they will be this entire sector will be 25% more efficient. It will save energy. So how they can do it, sir? We have to encourage them to have a technology shift, as some of the units have already demonstrated. We will try to educate them, do some hand-holding, some pilots, etc. At the same time, we will also like to them to have for more better products, porous better or tunnel kind of products, which are more energy efficient. We also want to increase their demand so that more and more energy efficient buildings can be constructed, sir. So this is the baseline, what we have taken as 2350, which is the baseline all over the country. And if they are 25% lower or more than that in terms of energy consumption, they will be awarded E3 mark on a provisional basis. Then they will start producing their product, and we will encourage the builders to source those products, and every year we will verify and then continue based on there. And then we will also educate them for more and more. So these are the products where they can have better efficiency and technology also.
Sir, the overall impact of the scheme, the last slide, sir. We will have almost 7 million ton of oil equivalent saving by in this take. We will be starting in coming year, this year, and then by 2030. It will also save 25 million tons of CO2, sir, because we are saving the coal. Most important, sir, it will also save a lot of raw material. Otherwise, we would have got about 30-40% more clay used for these bricks that can be saved. We will have almost 18 lakh energy efficient homes if the kind of bricks which we are expecting. It will also upgrade most of the majority of the units to a very efficient units. It will modernize the cluster. It will the overall potential is 14,000 crore investment, and we will have a very highly skilled job who will be more knowledgeable about the energy efficiency, how to save energy, how to operate cleanly. So the last slide, this scheme document, which will be launched today by Honorable Minister, contains the requirement, the process, how to apply, etc. The entire application process, what is the scheme about. The part 2 of the scheme document contains how the monitoring and verification will be done. We will try to hire the independent agencies who can do and what kind of barriers they can, and we will have the enforcement. Finally, we have the different formats, etc. And lastly, sir, we have also interacted with the builders. We are trying to encourage some builders who can take pledge that their upcoming projects or upcoming townships, they would like to pledge that they will be sourced by energy efficient bricks from E3 certified manufacturers, sir. Thank you so much, sir. Yes, sir. So now may I, with the permission of Chair, sir, may I request one of the Bricks Manufacturer Association representative, Mr. Ashok Tiwari. Can you please unmute yourself and give your inputs to Honorable Minister about this scheme? Thank you. Thank you. Am I audible? Hello. Am I audible? Yes, please. माननीय मंत्री श्री संघ सर, आदरणीय सभी शीर्ष अधिकारीगण, हमारे केंद्रीय संगठन के संरक्षक श्री अनंतनाथ सिंह जी, अन्य सभी केंद्र राज्य संगठन के पदाधिकारी व साथी, आज E3 के लॉन्चिंग समारोह में शामिल होना हमारे लिए गर्व व प्रतिष्ठा की बात है। हमारा विश्वास है कि ऊर्जा संरक्षण के मानदंड पर मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन इस माध्यम से सुनिश्चित होगा, यदि इसके प्रयोग या उपयोग में संपूर्णता हो। हमारा ये सेक्टर प्राय 1.5 लाख सूक्ष्म उद्यमियों का ऐसा समूह है जो कि इकाई के तौर पर तो कमजोर हो सकता है, परंतु सम्मिलित रूप से असाधारण क्षमता युक्त है। एक तरफ जहां हम 250 बिलियन ईंट बनाकर अपनी 80% मार्केट साझेदारी सुनिश्चित करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग के 1.5 करोड़ लोगों को उस समय सीजनल रोजगार का अवसर देते हैं जो कि कृषि कार्य के बीच के खाली समय का होता है। क्योंकि यहाँ पर मजदूरी स्थानीय प्राप्त होने वाले दर से 100% से 300% तक प्रतिदिन के हिसाब से अधिक होता है, इसलिए उनकी बढ़ती आमदनी से एक ओर स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास होता है, वहीं दूसरी ओर इस जनसंख्या के आय बढ़ने से अधिक प्रीपेड टैक्स आइटम खरीदते हैं। अनुमानतः रोजाना 7 से 10 लाख रुपए प्रतिदिन का इनडायरेक्ट टैक्स श्रमिकों से भी आता है। जब जनसंख्या के इस वर्ग का आर्थिक विकास होता है तो सरकार को भी डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है, जो कि हर विकासशील सरकार का अनिवार्य सपना है। E3 को लेकर हमारी अपेक्षा है कि इसकी कुछ ओनरशिप MSME ले तथा हमारे उद्योग के लिए एक पेरेंटिंग नोडल मंत्रालय के तौर पर अधिक सक्रिय हो। हमारे सेक्टर के अहमियत को पहचान देते हुए हमारे सेक्टर को नेगेटिव लिस्ट से निकालकर प्राथमिकता की सूची में लाया जाए। इससे सरकार के परसेप्शन भी बदलेगा और हम अधिक मोटिवेटेड भी होंगे। E3 के ऑब्जेक्टिव के प्राप्त की संपूर्णता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इस योजना का प्रयोग व उपयोग ठीक वैसे ही करें जैसा अपेक्षित है। हमारे उद्योग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांत के तौर पर प्रतिष्ठा मिले तथा इस उद्योग के वेरिएबल्स को, परिवर्तनशील अवस्थाओं को पहचान कर मैनेज किया जाए। इस विषय में हम सरकार के साथ कार्य करने के इच्छुक हैं तथा इसमें कुछ हमारे विचार व प्रस्ताव भी हैं। शॉर्ट टर्म प्रस्ताव,
हमारे यहाँ अधिकांश भट्ठे हाई ड्राफ्ट जिगजैग हो चुके हैं, जिनमें या नेचुरल ड्राफ्ट हैं, जिनमें ऊर्जा की खपत काफी कम है। हम चाहते हैं कि नंबर 1, ऊर्जा संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर स्किल अपग्रेडेशन श्रमिक व उद्यमियों के लिए शुरू किया जाए। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर कृषि अपशिष्ट के उपयोग और उनके तरीकों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तीसरा, रिसोर्स एफिशिएंट ब्रिक्स को बढ़ावा देना, जिसमें कोयला, मिट्टी, विद्युत और जल शामिल हो। चौथा, देश भर के साइंटिफिक साइज को सुनिश्चित करना अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि आईएस कोड्स तो हैं, पर ये लागू नहीं हुई। शायद बिल्डिंग बाइलॉज में परिवर्तन व सुधार की आवश्यकता है। अनसाइंटिफिक साइज की वजह से देश के अमूल्य रिसोर्सेज का काफी नुकसान व अनावश्यक खर्च हो चुका है। यह रोकना अनिवार्य भी है और वांछनीय भी। इस शॉर्ट टर्म के प्रस्ताव में कोई विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा हमारा मिड टर्म का प्रस्ताव है, इसमें E3 को और सक्षम रूप से प्रतिष्ठित करेगा। अन्य फर्नेस के विपरीत हमारे उद्योग की फर्नेस अलग इस माने में है कि प्रोडक्ट स्टेशनरी यानी फिक्स्ड होता है और आग मूव करती है यानी आगे बढ़ती है। प्राय अधिकांश भट्ठे खुले आसमान के नीचे होने से ऑफ सीजन यानी बरसात के अत्यधिक पानी सोख लेते हैं। फलतः प्रथम चक्कर में ही 30% से अधिक ईंधन लगता है। अतः उदाहरण के तौर पर 1.5 लाख भट्ठों में यदि 80,000 चिमनी मान लिया जाए तो प्रायः 12 लाख टन कोयला सिर्फ प्रथम चक्कर में लगता है, जो अंततः 30% से 50% तक घट जाता है। यदि हम ये बचत करें तो प्रति वर्ष 3 लाख टन कोयला पहले ही चक्कर में बच जाएगा और उसी अनुपात में उत्सर्जन में कमी आएगी और रिसोर्स भी संरक्षित होगा। E3 कॉन्सेप्ट को सफल करने हेतु हम एक थर्मल एनर्जी व विद्युत एनर्जी को एक साथ बचा सकते हैं। इसके लिए हमें शेड बनाने तथा उस पर न्यूनतम 25 किलोवाट का सोलर पैनल की आवश्यकता होगी। हमारी क्षमता नहीं है कि हम इसे अपनी क्षमता से कभी कर पाएंगे, अतः हमें इसे एक प्रोजेक्ट के तौर पर चिन्हित कर फाइनेंस चाहिए होगा, जिसमें कि सब्सिडी हो तथा ब्याज में भी सब्सिडी हो और न्यूनतम 7 वर्ष के अवधि के लिए की जाए। बाद में इसी सेट के नीचे हम हीट को ट्रैप करके भविष्य में विकसित देशों की भांति ड्रायर भी लगा सकते हैं और इस हीट को भी हम काम में ला सकते हैं, ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। इससे E3 कॉन्सेप्ट को और यथार्थपरक होगा। दूसरे भाग में इंटरनल फ्यूल मिलाने की तकनीक व साधन को प्रमोट किया जाए, जिसमें कृषि अपशिष्ट एक रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर इंडस्ट्रियल वेस्ट, कोल डस्ट इत्यादि के उपयोग के प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाए तथा इसमें हमें ट्रेनिंग भी दी जाए और हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग टर्म सुझाव, इसमें उच्च स्तरीय तकनीक विकल्प व स्वच्छ ईंधन, अधिक रिसोर्स इफिशिएंट ब्रिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर ऊर्जा संरक्षण के मानदंड को स्थापित कर सकते हैं। अशोक जी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आपके सुझाव आप लिख के भेज दें हमको, क्योंकि और अपना कंक्लूड कर लें, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। आप इन सुझावों को आप, हाँ जी, अपना शीघ्र वो कर ले। जी सर। सर बिल्कुल एक मिनट लगेगा सर। अंत में सरकारी संस्थाएं हमारी अवहेलना न करें। हम अधिक पढ़े लिखे लोग भी नहीं है और न बड़े उद्यमियों की तरह हमारी रिस्क लेने की क्षमता है, परंतु जब हम अवहेलित होते हैं तो हमारा मनोबल भी टूटता है। तत्काल एनसीआर का उदाहरण के तौर पर सीपीसीबी ने अपनी ही रिपोर्ट को कोर्ट में प्रतिष्ठित न कर पाने की वजह से 8 लाख श्रमिक की रोजी रोटी गई और हजारों उद्यमी बर्बाद हो गए। अपने आदेश से 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके जिग जैग बनवाया गया और बिना चलाए ही बंद हुआ। कोई अकाउंटेबिलिटी किसी भी संस्था की नहीं हुई। इन कारणों से हमारा मनोबल टूटता है। शायद बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कौन से मानदंड बनाए जा रहे हैं जहां जीने का अधिकार छीन कर सिर्फ सांस लेने के अधिकार दिया जा रहा है। आज E3 के निर्धारित मानदंड के भीतर हमें मान्यता देने का शुभ दिन है। इससे हम आश्वानित भी हैं और नए बाजार के आयाम की तरफ भी देख रहे हैं। हम अपने संगठन की तरफ से वादा करते हैं कि हम ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे तथा सरकार के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं। हमें E3 सर्टिफिकेट प्रदान कर हमें नया रिकॉग्निशन देने के लिए आपका आभार। धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद अशोक तिवारी जी। हमारे साथ डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई श्री देवेंद्र कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। मैं आई रिक्वेस्ट श्री डीसी एमएसएमई टू काइंडली गिव हिज रिमार्क्स। थैंक यू। DC MSME sir, Mr. DK Singh. He's there. उनका नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गया उनका। सर तब तक श्री DK सिंह DC MSME सर। लिंक टूट गया लगता है, आगे चलें सर। So now may I request Secretary Power Shri Alok Kumar sir. We will come back to DC MSME after sir. So kindly address the gathering. Thank you sir. हमारे सम्मानित माननीय मंत्री जी श्री RK सिंह जी, मेरे सहयोगी श्री राहते एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री पावर, श्री राजपाल जी सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र, श्री अभय भाकरे जी डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, डेवलपमेंट कमिश्नर MSME, ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफैक्चरर फेडरेशन के सभी ऑफिस बेरर्स और उनके सदस्यगण, और हमारे साथ मौजूद जो मीडिया और टीवी कवरेज के साथी हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग एक साथ सम्मिलित हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बात आपके सामने रखना चाहूँगा। भारत की जो हमें अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू एनर्जी ट्रांजिशन है। क्योंकि हमें ग्रो भी करना है और हमें और अधिक ग्रीन भी होना है, तो यही हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट है, नेशनल कमिटमेंट है। और हमारा जो एक एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो हमारा अभियान है, उसका एक मूल मंत्र है एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। उसको हम लोग कई तरीके से अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी एनर्जी ग्रोथ के साथ साथ जहां हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एनर्जी मिक्स में जो नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित जो एनर्जी है, उसका हम लोग अनुपात बढ़ाएं, प्रतिशत बढ़ाएं। उसमें एक ये भी पहलू है कि जो हमारी एमिशन इंटेंसिटी है हमारी इकोनॉमी की, उसको नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए हमें अपना डिमांड साइड भी कम करना एक तरीका है। क्योंकि जब तक हमारी रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगी, तब तक उस ट्रांजिशन पीरियड में हम अपनी जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी की खपत को कम करके अपनी एमिशन इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। इस दृष्टि से हमारा जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उन्होंने कई योजनाएं अभी तक लागू की, जिनके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में मुझे ये अवगत कराया गया है कि जो हमारे मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम और ब्रिक, इनमें से सीमेंट, स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में एनर्जी एफिशिएंसी में काफ़ी अधिक सुधार अभी तक हुआ है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि अब हम एक ब्रिक इंडस्ट्री में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए एक नया शुरुआत आज कर रहे हैं। बहुत ही शुभ दिन है, जिससे चूँकि आज ही आज़ादी का जो 75वां महोत्सव, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव आज से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, आज के दिन माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हम लोग ये एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं। ये बहुत टाइमली है, चूँकि अगले 15 वर्ष में जो हमारा बिल्डिंग स्टॉक है भारत का, वो लगभग दुगना होने वाला है। यानी कि हम ईंटों की खपत बहुत ज़्यादा होने वाली है 15 वर्षों में। तो अगर हम अपनी ईंटों को एनर्जी एफिशिएंट उनका प्रोडक्शन बनाएंगे और उनका डिज़ाइन ऐसा करेंगे कि उसमें बाद में भी एनर्जी एफिशिएंसी मिलती रहे, जो बिल्डिंग्स में इंसुलेशन के माध्यम से, तो इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें बहुत बड़ा सहयोगी होगा। और ये भी एक अच्छा महत्वपूर्ण इसका एक पहलू है कि ये MSME सेक्टर में हमारा ये जो इंडस्ट्री है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण एक अभियान है, जिससे
एनर्जी एफिशिएंसी होने से इसकी लागत कम होगी। हमें ये बताया गया है कि करीब जो ईंट बनाने की प्रक्रिया है उसमें करीब 25 से 40% जो कॉस्ट है वो एनर्जी की आती है। उसमें अगर हम 1/4 बचत कर लेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से, तो मोटा मोटा करीब 10 से 12% हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को एफिशिएंट बनाएंगे, अपनी एमएसएमई इंडस्ट्री को एफिशिएंट बनाएंगे, तो जो हमारे आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो और साकार होगा। क्योंकि हमारे एमएसएमई जितनी कॉम्पिटिटिव होगी वो उतने हमारे जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगे और हमारा जो उतना एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा और नई टेक्नोलॉजी को पैदा करने में और लगाने में जितने नए जॉब क्रिएट होंगे, तो ये वास्तव में एक बहुत अच्छा एक इसका परिणाम आने वाला है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफैक्चरर फेडरेशन ने इस नए इनिशिएटिव को आगे बढ़ के जो है इसको अपनाया है। और जैसा आज बताया कि वो ऊर्जा दक्षता के लिए लगे हुए हैं। हमारा ये भी आपसे मुझे कहना है कि जो आपने सुझाव दिए हैं वो हमने नोट कर लिए हैं कि इसको और कैसे आगे ले जा सकते हैं। उन सब पर हम माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे काम करेंगे। मैं इस मौके पे फिर से एक बार मंत्रालय की ओर से और आप सबको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को भी इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव एक लागू किया है। धन्यवाद। हमारे साथ यदि श्री डी के सिंह जी डीसीएमएस में जुड़े हैं तो कैन मे आई रिक्वेस्ट हिम टू गिव इनपुट्स। Okay, I think we'll go ahead with the launch of this E3 certification scheme. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir, close. Yes, sir. Sir. May I request Honorable Minister to say a few words and guide us. Thank you, sir. आलोक कुमार जी, सचिव ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, राहटे जी, अपर सचिव ऊर्जा मंत्रालय, राजपाल जी, संयुक्त सचिव ऊर्जा मंत्रालय, ठाकरे जी, डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, साथियों, आजकल उत्तरोत्तर दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने पर बहुत ही ज़्यादा विचार विमर्श हो रहा है। बहुत ही दबाव है सभी देशों पर कि वो अपना एमिशंस कम करें। पेरिस में 2015 में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी। उसके पहले क्योटो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी और अब इसी साल इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी नवंबर में। इसमें सभी देश जुटते हैं और ये तय करते हैं कि कौन सा देश कितना अपना एमिशन कम करेगा। चिंता की बात यह है कि क्योटो में जो विभिन्न देश तय किए कि वो अपना एमिशंस कम करेंगे, वो फुलफिल नहीं हुए। पेरिस में जो विभिन्न देश कमिटमेंट किए कि अपना एमिशंस कम करेंगे, वो भी अधिकांश फुलफिल नहीं। खुशी की बात यह है
कि भारत ने जो कमिटमेंट किया था अपने एमिशंस कम करने का और अपना एनर्जी का जो जनरेशन का मिक्स है उसको बदलने का, उसमें काफी प्रगति हुई। पेरिस में जो हमने कमिटमेंट्स किया उसको हम मीट ही नहीं करेंगे, उससे अधिक हम अचीव करेंगे। इसीलिए नवंबर में जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, सभी देश इकट्ठा होने वाले हैं इंग्लैंड में, उसमें हम ही एक देश हैं जो कि जाएंगे इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जो हमने प्लेज किया पर्यावरण के मदद को मद्देनजर रखते हुए अपना एमिशंस कम करने का, उस प्लेज पर हम खड़े उतरे हैं, उसको हम क्रॉस कर रहे हैं, बाकी कोई देश नहीं कर पा रहा है। यह संतोष की बात है। विभिन्न एजेंसीज ने असेसमेंट किया और यह बताया है कि जितने बड़े इकोनॉमीज हैं, जितने बड़े देश हैं, उसमें भारत ही एक देश है जो कि उस ट्रेजेक्टरी पर है जो ट्रेजेक्टरी आवश्यक है दुनिया में टेम्परेचर इंक्रीज को 2% तक सीमित रखने में, और कोई देश नहीं। लेकिन यही पर्याप्त नहीं। हमारे अचीवमेंट्स तो काफी हैं। मैं बता दूं, हमने प्लेज लिया था पेरिस में कि 2030 तक हमारे विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से होगा, यानी कि ऐसे सोर्सेस से होगा जो कि साफ है, जिसमें कि कार्बन का एमिशंस नहीं होता है। खुशी की बात यह है कि हमारा एनर्जी ट्रांजिशन इतना तेजी से हो रहा है कि आज हमारा विद्युत उत्पादन का 38% क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से हो गया और 2030 तक इसे हम बढ़ा करके 60 से 65% तक कर दें। हमने यह प्लेज किया था पेरिस में कि हमारा जो एमिशन इंटेंसिटी है इकोनॉमी का, यानी कि जीडीपी के मुतालिक जो हमारा एमिशंस होता है, उसको 2030 तक हम 33% तक कम कर देंगे 2005 के बनिस्बत। खुशी की बात यह है कि 2018 तक जो असेसमेंट हुआ उसमें हम 26% तक इसको कम करने में सफल हो गए। कुल मिलाकर के हमने एनर्जी एफिशिएंसी के कदमों को उठाकर एमिशंस में 310 मिलियन टन ऑफ CO2 एमिशन कम किया है। 310 मिलियन टन CO2 एमिशंस हमने कम किया। ये कई देशों का टोटल एमिशंस के बराबर है। देश में जितने पेड़ पौधे हैं सब जितना CO2 एब्जॉर्ब करते हैं उतने ही बराबर हमने एमिशंस कम कर दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी में हम आज दुनिया में सबसे तेज गति से क्षमता स्थापित कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि मात्र हमें ही ये सब हम ये कर रहे हैं, इसी से हमें संतोष नहीं है। जब तक कि सभी देश मिल करके इस चुनौती का सामना नहीं करेंगे तब तक हम ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं कर सकते। और ये बात हम सभी देशों को कहते रहते हैं, और इंग्लैंड में भी, मैनचेस्टर में भी हम ये बात सभी देशों को कहेंगे। लेकिन हम लोग की सरकार की यह प्रतिबद्धता है, हम लोग की सरकार के लिए अपने देश का पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारे प्रधानमंत्री के लिए देश का पर्यावरण, दुनिया का पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण। हम लोग का यह मानना है कि दूसरे देश कुछ करें नहीं करें, हमें जो वांछित है वो हम करेंगे ताकि यथासंभव हम आने वाले पीढ़ियों के लिए एक अच्छा पर्यावरण छोड़ करके जाएं। अभी इसमें हमें बहुत काम करना है और उसमें आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण।
क्योंकि आप बहुत बड़े एम्प्लॉयर भी हैं और आप बहुत बड़े एनर्जी के कंज्यूमर भी हैं और आपसे एमिशंस भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जितने भी सेक्टर्स को हम लोगों ने एड्रेस किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर आप, और जो काम आप करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझे खुशी है, मुझे बताया गया है, भाकरे साहब ने बताया है कि जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है उसके प्रति काफी उत्साह है आप लोगों में। मुझे इससे खुशी है। इससे तो दुनिया को फायदा होगा ही, अगर एमिशंस कम होगा तो देश को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। क्योंकि यदि आप एनर्जी बचाते हैं तो आपका कॉस्ट कम होगा, आपको भी फायदा होगा। और ये फायदा आप जो अपने यहां एफिशिएंसी ला रहे हैं ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगा। आपके बनाए हुए ब्रिक्स से जितने मकानात बनेंगे वो सब एफिशिएंट होंगे, तो आप जो करेंगे उसका मल्टीप्लायर पूरे देश में है और आने वाले 25-50 वर्षों तक रहेगा। इसलिए आप इसमें सहभागी बने, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे यही निवेदन होगा कि आप लोग सब मिल करके ये प्लेज लें कि सभी के सभी अपने आप को अगले 2-3 वर्षों में E3 के लायक बन जाएं। हम लोग इसमें आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। जिस भी सहायता की आवश्यकता होगी, कंसल्टेंसी की आवश्यकता होगी, परामर्श की आवश्यकता होगी, वो हम देंगे। अमूमन हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि जितने सरकार के यूजर्स हैं उनको हम कहें कि साहब आप E3 स्टैम्प ब्रिक्स ही लें। हम लोग ये सर्टिफिकेशन प्रारंभ कर देंगे और अमूमन सरकार से कहेंगे कि ये कन्वर्जन करने में 2 साल 3 साल लगेगा, तो 3 साल के बाद सरकार के जो भी ब्रिक्स का इस्तेमाल हो सरकार के क्षेत्र में या सरकार की योजनाओं में, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो 2 साल 3 साल बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी ब्रिक्स लगे वो E3 सर्टिफाइड ब्रिक्स ही लगे। इसी तरह जो भी सरकार के मकानात है, जो भी सरकार की योजना है, उसमें E3 सर्टिफाइड ब्रिक्स ही लगे। यह प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके महत्ता को हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी पर्यावरण के ह्रास होने के जो कुप्रभाव हैं अभी कुछ सामने आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये और भीषण होता जाएगा। अभी कुछ सामने आ रहा है प्रभाव, लेकिन धीरे धीरे ये और भीषण होते जाएगा। और इसलिए जिस काम में हम लोग जुटे हुए हैं बहुत ही आवश्यक है। आपके सहयोग की आवश्यकता है, आप हमसे जुड़े, इसकी आवश्यकता है, हम आपसे जुड़ेंगे और हम लोग साथ मिल करके अपने एमिशंस को कम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे इस प्रोग्राम के मैनेजर मिस्टर मिलिंद देवरे, डायरेक्टर बी, ही विल जस्ट वेरी क्विकली हेलो। Thank you, sir. Dhanyawad, sir. I'm really very pleased to give a vote of thanks for this launching ceremony. First of all, I sincerely thanks to our Honorable Minister, Shri R.K. Singh Ji, for his gracious presence and very continuous and strong support for the energy efficiency and energy conservation activities, as well as to Bureau. I also thanks our Secretary, Shri Alok Kumar Ji, for his presence and the support for this launch event. I also thanks our Additional Secretary, Shri S.K.G. Rahate sir, who is being also in charge for the energy conservation and his support. I also thanks our Rajpal sir, Senior Advisor, Ministry of Power, for his strong and continuous support for all the energy efficiency programs as well as the schemes. I also thanks GIZ, who is a partner with us for developing this scheme. Lastly, I thanks to the Brick Manufacturing Associations Regional as well as All India
Association for their support. Sir, I'm very happy to share here. We have received more than 200 applications for E3 certification in the just one month launch, sir. Not launch, is just expression of interest. So we are going to release the certificate to the qualified bidders, sir. So I also lastly thanks to all the builders as well as the brick manufacturing units, and lastly the media and the press people, particularly Doordarshan, PIB, for covering this news to the all the people, because it's finally it is being used by the common man. So thank you everybody for their presence.